Assalamualaikum. Today we will discuss a very important topic of organic chemistry, that is about reactivity and reactions of alkanes. First of all, you should know the content of these slides. Number one, we will discuss reactivity. Number two, the types of reactions which alkanes follow. Number one, the type of reaction is combustion. Number two, oxidation. And there are two types of oxidation: complete and incomplete oxidation. Next, nitration, and the next will be halogenation. Moving toward the first slide, that is reactivity. Alkanes are actually saturated hydrocarbons. The valency of each carbon atom is satisfied through single bond with four other atoms. Actually, अल्केन्स की बात की जा रही है कि अल्केन्स में क्योंकि हर कार्बन ने दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स बनाए होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स आर हाईली saturated hydrocarbons. The bond which is formed due to the head-to-head overlapping on nuclear axis is sigma bond. और क्योंकि अभी हमने कहा कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है और ये बॉन्ड भी सिग्मा बॉन्ड होता है, nucleus has hold on its electrons, so it is not attacked by other species easily. इसलिए अल्केन्स के बॉन्ड्स के ऊपर दूसरे स्पीशीज का अटैक करना बहुत मुश्किल होता है. That's why we can say that alkanes are least reactive या फिर inert या फिर stable hydrocarbons. But two types of reactions are shown by alkanes under different conditions. Number one, substitution reactions, and the other is elimination reaction. In these slides, we will discuss substitution reactions. Four reactions will be discussed. Number one, combustion. Number two, oxidation. Number third, nitration. Number four will be halogenation. Moving toward the first reaction, that is combustion. सबसे आसान रिएक्शन. कंबस्टन का मतलब होता है जलाना, किसी चीज का जलना. बर्निंग ऑफ अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स की रिएक्शन की बात करें तो बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फ्लेम टू प्रोड्यूस. जब भी हम अल्केन्स की ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? तीन चीजें बनती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. चलिए एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, मीथेन CH4, the very simpler molecule of alkane family. When methane reacts with oxygen O2, they burn in the presence of flame and converts into carbon dioxide, water, and heat. This type of energy which is released varies based upon reactant species. Second reaction is oxidation. There are two types of oxidations: incomplete oxidation और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन. पहले इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को देखिए. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो हमारे पास बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस हो, हमारी प्रोडक्ट्स चेंज हो जाती हैं. क्या बनता है? मीथेन को हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक. This is incomplete oxidation. Moving toward complete oxidation, actually, oxygen in the presence of excess of alkanes in the presence of excess of oxygen converts into alcohols. Alcohols convert into aldehydes, and if aldehydes are further oxidized, they are converted into carboxylic acid. और अगर carboxylic acid की भी further oxidation की जाए तो वो break down हो जाते हैं. ये सारे प्रोसेसेस किसकी मौजूदगी में होती हैं? ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. इट मींस कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करके हम अल्कोहल्स बना सकते हैं और अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड्स बनाए जा सकते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन हो सकती है. अल्केन्स का जनरल फार्मूला यहाँ पे शो किया गया है RH. अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला ROH. Aldehydes का general formula RCHO, while carboxylic acid are represented by the general formula RCOOH. And whenever carboxylic acids are further oxidized under the same conditions, they are broken down into carbon dioxide and alkanes. It means alkanes are converted into alcohols, alcohols are converted into aldehydes, and aldehydes are converted into carboxylic acid. The complete oxidation is in the presence of, no doubt, excess oxygen along with certain catalysts such as copper, 400 degrees Celsius temperature, and pressure must be 280 m.
फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, अल्केन्स, तो सबसे सिंपल हमने अल्केन लिया, कौन सा? मीथेन। मीथेन को हमने एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, कॉपर 400 डिग्री टेम्परेचर और 200 ATM के प्रेशर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मीथेन कन्वर्ट हो चुका है मेथानोल में। इट मींस कि अल्केन्स की कन्वर्जन हो चुकी है अल्कोहल्स में। इन अल्कोहल्स को नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए तो इन्हीं कंडीशंस पर तो हमारे पास मेथानोल कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड भी। इट मींस अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। Third step, if aldehydes are further oxidized in the presence of oxygen under the same conditions of copper 400 degree temperature, 200 atmospheric pressure, this formaldehyde can also be oxidized further to formic acid, which is simplest family member of carboxylic acid. And in the fourth step and the last one, carboxylic acid or formic acid is when further oxidized, it is broken down into its molecules, which are carbon dioxide and water. It means alkanes can be converted into alcohols, alcohols can be converted into aldehydes, and aldehydes are converted into carboxylic acid when they are subjected to excess of oxygen along with catalyst copper 400 degree temperature and along with 200 atmospheric pressure. Next reaction is nitration. As the name is indicating, substitution of nitro group. क्योंकि अल्केन्स जनरली आपको सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट के रिएक्शंस देंगे, तो अल्केन्स में मौजूद एक हाइड्रोजन अगर नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन बोलेंगे. हाउ वी कैन डिफाइन इट? Substitution of hydrogen atom by a nitro group in presence of temperature 400 to 500 degrees Celsius in vapor phase is called nitration. अल्केन्स में मौजूद एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन हो जाए नाइट्रो ग्रुप के साथ तो हम इस प्रोसेस को नाइट्रेशन बोलेंगे. चले हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH4. CH4 को जरा मैंने स्ट्रक्चरल इसका फॉर्म लिखा है CH3H. इट मींस दिस इज मीथेन CH4. ट्रीट किया मैंने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ. एक्चुअली जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है ये कहाँ से हमें मिलेगा? नाइट्रिक एसिड से, विच हैज द फॉर्मूला HNO3. इसको जरा मैंने आपके सामने इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है अंडर द प्रेशर टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप NO2. और ये NO2 ग्रुप हमें कहाँ से मिला है? नाइट्रिक एसिड से. जो आपके पास साइड प्रोडक्ट बनती है दैट इज वाटर. इट मींस कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप. आपके पास यहाँ पे नाइट्रोमीथेन्स या नाइट्रो अल्केन्स की फॉर्मेशन हो सकती है और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन. नेक्स्ट, हैलोजिनेशन. एज द नेम इज इंडिकेटिंग, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन एटम. एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अल्केन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन की जगह या दो हाइड्रोजन की जगह भी हैलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, हाइड्रोजन की जगह हम हैलोजन एटम लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्चुअली मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. एक स्टेप में रिएक्शन हो नहीं सकता. जब मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो रिएक्शंस जहां पे मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसे रिएक्शंस को हम मैकेनिज्म बोलते हैं. स्पेशली हैलोजिनेशन के केस में ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है. ऐसे मैकेनिज्म को हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के 3 मेन स्टेप्स हैं. नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 प्रोपेगेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन. इनिशिएशन, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, इनिशिएट करना, किसी चीज को स्टार्ट करना. इट मींस यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है रेडिकल्स में. मींस के इनिशिएशन में रेडिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, रेडिकल्स की जनरेशन होती है. मॉलिक्यूल्स को जब सब्जेक्ट किया जाता है, जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर सनलाइट एक्सपोज की जाती है तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है. होमोलेटिक क्लीवेज के रिजल्ट में आपके पास ये रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज प्रोपिगेशन. प्रोपिगेशन मीन इज टू कल्टिवेट, इज टू ग्रो. यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन ग्रो करता चला जाता है. प्रोपिगेशन में आपने करना क्या है? एक मॉलिक्यूल को एक रेडिकल के साथ ट्रीट करना है. रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल और रेडिकल ही बनता है, बस उनकी नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होगी.
एंड द थर्ड वन इज, ये सेकंड स्टेप तो मींस के चले जाता होगा, मॉलिक्यूल और रेडिकल बनते ही चले जाते होंगे, इस रिएक्शन को कहीं पे हमने स्टॉप करना है और इसको स्टॉप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या किया जाता है, जब बहुत से रेडिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, वो उनके दरमियान बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है और आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाती हैं, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। तो चलते हैं आज हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की एक एग्जांपल की तरफ। हम फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन करने जा रहे हैं। यू नो दैट आपके पास डिफरेंट हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम इतना इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके रिएक्शंस विगोरस होते हैं, जबकि आयोडीन की रिएक्शन टाइम टेकिंग है, सो वी कैन यूज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो आज की एग्जांपल में मैंने लिया है क्लोरीन। ये सबसे पहले इनिशिएशन में अगर आपको याद हो, हमने क्या लेना था, एक मॉलिक्यूल, और उससे क्या बनाने थे, रेडिकल बनाने थे। यहाँ पे देखें हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे दो एटम्स मौजूद हैं, Cl एंड Cl, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दरमियान एक बॉन्ड मौजूद है और इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के एटम के पास आ जाता है और ये क्लोराइड के एटम्स बन जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक डॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, दीज डॉट्स आर एक्चुअली रेडिकल। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इनिशिएशन, जिसमें हमने मॉलिक्यूल से रेडिकल की फॉर्मेशन की। नंबर 2, प्रोपेगेशन। मैंने अभी बताया था प्रोपेगेशन का मतलब है कल्टीवेट करना, ग्रो करना। इसमें क्या किया जाता है कि एक मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल को एक रेडिकल के साथ ट्रीट करते हैं। प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल और रेडिकल ही बनना चाहिए। तो चले आज हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं अल्केन का, स्टेबल मॉलिक्यूल है, CH4 है। इसको मैंने ट्रीट किया अभी अभी जो मैंने बनाया था रेडिकल, मॉलिक्यूल और रेडिकल को ट्रीट किया। एक्चुअली हुआ क्या कि CH3H, इट मींस कि CH4 और Cl रेडिकल को जब मैंने ट्रीट किया, H ने बॉन्ड बना लिया Cl के साथ। इट मींस कि HCl मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई और पीछे क्या रह गया, CH3, कार्बन का एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे एक डॉट के साथ। और इस डॉट का मतलब है कि ये मिथाइल का रेडिकल है। इट मींस कि मैंने एक मॉलिक्यूल को एक रेडिकल के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास मॉलिक्यूल और रेडिकल की ही फॉर्मेशन हुई। प्रोपेगेशन स्टेप मोर देन वन स्टेप्स में हो सकता है। नेक्स्ट हम स्टेप में देखते हैं, ये अभी अभी जो हमने सेकंड स्टेप में मिथाइल का रेडिकल बनाया, एक रेडिकल को मजीद हम एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करें। यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl का बॉन्ड CH3 के साथ बन सकता है, आपके पास बन जाता है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl। पीछे क्या रह गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, Cl अकेला रह गया अलोंग विद इट्स इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कहा कि ये Cl का रेडिकल बन चुका है। आपने देखा प्रोपेगेशन के स्टेप में एक मॉलिक्यूल को एक रेडिकल के साथ ट्रीट करने से मॉलिक्यूल और रेडिकल्स ही बनते जा रहे हैं। इट मींस कि ये स्टेप लॉन्ग है, ये कॉन्टिन्यूअस स्टेप्स है। इसलिए हम यहाँ पे इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक रेडिकल को हमने ट्रीट कर दिया दूसरे रेडिकल के साथ। हमारे पास मीडियम में बहुत से रेडिकल्स मौजूद थे, दो रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ ट्रीट किया। मिथाइल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोराइड के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को जब एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और आपके पास दो रेडिकल्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। रेडिकल की नेचर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब ये जो आपने देखा है CH3Cl, ये आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। इट मींस वी कैन सिंपली से दैट मीथेन को हमने कन्वर्ट कर लिया मिथाइल क्लोराइड में। आपने देखा मीथेन का फॉर्मूला था, सेकंड स्टेप इधर देख सकते हैं, CH4, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, CH3Cl। इट मींस कि वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरो ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड हेलोजिनेशन, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो दिस वाज क्लोरीनेशन। That was all about today's lecture, जिसमें हमने रिएक्टिविटी और रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स की बात की। अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। दो तरह के रिएक्शंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आज हमने 4 पढ़े। नंबर 1 कंबस्शन, नंबर 2 ऑक्सीडेशन, नंबर 3 नाइट्रेशन, एंड द लास्ट वन वाज हैलोजिनेशन। Thank you so much.